Hello students, welcome to this class. Today we are going to discuss a chapter from class 6 NCERT syllabus. The name of the chapter is the living organisms and their surroundings. I hope you all have your textbooks and you also have your notebooks to note down the important definitions and terms which we are going to discuss during this chapter. As you know, this chapter is a lengthy one, so I have decided to split it into two parts. And this is the first part which we are going to discuss today. प्यारे विद्यार्थियों, आपको पता ही है कि आज हम कक्षा 6 के 9वें अध्याय जिसका नाम सजीव और उनका परिवेश है उसका अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी के पास आपकी पाठ्यपुस्तक भी होगी तथा आप अपने पास एक कॉपी भी रखे हैं ताकि आप बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषाओं को और विभिन्न चीज़ों को जिन्हें आज हम डिस्कस करने वाले हैं उनको नोट भी करते रहेंगे। आप अपना पूरा ध्यान स्क्रीन पर रखेंगे, मैं जो बोलूँगा उसको ध्यानपूर्वक सुनने का प्रयास करेंगे और बीच बीच में अपनी कॉपी पर उस सभी चीज़ों को नोट भी करते रहेंगे जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब मैं आपके सामने से स्क्रीन पर नहीं रहूँगा और आप इस तैयार की हुई प्रेजेंटेशन को देखेंगे और लगातार उसको ध्यानपूर्वक सुनने का प्रयास करने के साथ साथ नोट करेंगे। तो मैं अब इस चैप्टर को आपके सामने प्रस्तुत करने का कोशिश करता हूँ, प्रयास करता हूँ। The objective of this lesson. First, we will going to discuss the objectives of this lesson. The student will learn and understand about different things which we are going to study in this lesson. First is the living organism. We will try to find out the definition of living organism, what it means to us. Second, the organism where they live. We will try to find out the different locations or different region where organisms lives. We also try to find out habitat and adaptations, types of habitat, component of habitats, adaptation in various animals living in different climatic conditions. And in the last of this chapter, we also discuss the characteristic of living organisms. इस अध्याय में हम विभिन्न महत्वपूर्ण बिंदुओं पर जिस पर चर्चा करने वाले हैं उसमें सजीवों की परिभाषा और उसके विषय में जानने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा उन परिवेशों के उन स्थानों के बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे जहां वो रहते हैं। इसके अतिरिक्त आवास और अनुकूलन को समझने का प्रयास करेंगे। हम जानने का प्रयास करेंगे कि आवास के कितने प्रकार हो सकते हैं। हम आवास के घटकों के विषय में भी इस अध्याय में अध्ययन करने वाले हैं। इसके साथ साथ हम विभिन्न जंतुओं और पादपों में पाए जाने वाले अनुकूलनों के विषय में अध्ययन करेंगे जो विभिन्न जलवायु परिस्थितियों में रहते हैं। और इस अध्याय के अंत में हम सजीवों के विभिन्न लक्षणों का भी अध्ययन करेंगे। As we know, पहेली and बूझो both are the part of our classroom and they visited to different places during their vacations and as you see on the screen that this is a mountain region, this is a hilly area where they visited. They also visited to desert area. You can see on the screen that camels are in the desert area, and in the right side of your screen you will find cactus, which is one of the prominent plant variety found in deserts. And this is the scene of a sea beach which they visited during their vacations. तो हमने देखा कि बूझो और पहेली अपनी इस यात्रा के दौरान विभिन्न स्थानों का भ्रमण करते हैं जिन स्थानों पर आमतौर पर अक्सर हम लोग भी जाया करते हैं। आप में संभवतः कई लोग वहाँ गए होंगे। वो लोग सी बीचेस पे गए, वो लोग डेजर्ट में गए, वो लोग हिली एरियाज में गए और विभिन्न स्थानों पर पाए जाने वाले जंतुओं और पेड़ पौधों या वनस्पतियों के विषय में भी उन्होंने अध्ययन किया। क्योंकि इस अध्याय के दो प्रमुख टाइटल के पार्ट्स हैं। देयर आर टू main terms in the title of this chapter. The first term is organism. We will try to find out a very easy definition of organism. What does it means to us? So organism refers to anything that act or function like a living thing. You can also say that any living structure such as plant, animal, fungus or bacteria capable of growth and reproduction. सजीव के बारे में हम सरल रूप से समझने का प्रयास कर सकते हैं किसी भी ऐसे वस्तु या जीव के बारे में जिसके अंदर सजीवों के लक्षण पाए जाते हैं। वही एक
पादप भी हो सकता है, एक पौधा भी हो सकता है, एक जंतु भी हो सकता है, या सूक्ष्म जीव के रूप में एक फंगस या बैक्टीरिया भी हो सकता है, जिसमें ग्रोथ यानी वृद्धि करने और जनन करने की क्षमता या गुण पाए जाते हैं. According to the definition of surrounding, surrounding means the nearby environment, all object close to you as well as the location itself or condition where they live. परिवेश का अर्थ हम आसपास के वातावरण से लगाते हैं. हमारे आसपास जो विभिन्न प्रकार की चीजें उपस्थित हैं वो सभी मिलकर उस स्थान के परिवेश का निर्माण करती है. वो स्थान विशेष भी परिवेश हो सकता है, वहाँ की परिस्थितियाँ भी परिवेश को निर्धारित करती हैं. तो हम सरल भाषा में कह सकते हैं किसी भी जीव के आसपास के स्थान को हम उसका परिवेश मान सकते हैं. नाउ द क्वेश्चन अराइजेज इन द माइंड ऑफ बोथ पहेली एंड बूझो कि इज देयर एनी प्लेस on earth where there is no onism, because when they visited different places they found onism everywhere, even in mountain hills, in deserts, even in sea beaches they found number of varieties of onism. So they want to know, is there any place where there is no onism. पहेली और बूझो अपनी यात्रा के दौरान जो विभिन्न स्थानों का भ्रमण करते हैं उन स्थानों पर वो पाते हैं कि विभिन्न प्रकार के जीव जंतु उपस्थित हैं. अब उनके मस्तिष्क में एक प्रश्न आता है, वो जानना चाहते हैं कि क्या पृथ्वी पर कोई ऐसा भी स्थान है जिन स्थानों पर किसी प्रकार के जीव को नहीं पाया जाता या किसी भी प्रकार के जीव की उपस्थिति वहां नहीं है. बूझो एंड पहेली सर्च्ड एवरीवेयर नियर देयर सराउंडिंग but they found onism everywhere. Paheli and Bujo went to different places. They go to inside their house, in the cupboard, in kitchen, and in various places inside the room. They also went to outside their room, in garden and in parks, and in every place they found numerous number of onism. You can see on the screen, starting from bees to scorpions to different onisms. Even lizards are found everywhere. So they don't found even a single place where there is no onism. पहेली और बूझो विभिन्न स्थानों पर जाते हैं और ये प्रयास करते हैं जानने का कि कोई स्थान ऐसा भी है जहाँ सजीव नहीं पाए जाते हैं. उनकी ये यात्रा के दौरान वो देखते हैं कि ऐसा कोई स्थान उनको संभवतः मिलता ही नहीं जहाँ की कोई भी सजीव नहीं पाया जाता हो. Paheli and Bujo both get surprised when they read people have even found tiny living organisms in the opening of volcanoes. और बहुत आश्चर्य की बात होती है पहेली और बूझो के लिए कि बहुत से वैज्ञानिकों ने ज्वालामुखी के मुहाने तक पर सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति को पाया है. तो इसका अर्थ ये हुआ कि सजीवों की उपस्थिति पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के परिवेशों में पाई जाती है और ऐसे किसी परिवेश को ढूंढना संभवतः मुश्किल ही है जहाँ किसी प्रकार का कोई जीव उपस्थित ना हो. तो पहेली और बूझो एक कार्य करते हैं. देन पहेली एंड बूझो डिसाइडेड टू प्रिपेयर अ टेबल which contain different types of surroundings, and also they enlisted the number of animals and plant found in that particular area. So according to this table which is prepared by Paheli and Bujo, in forest area they found lion, deer, neem tree, banyan tree, and in mountain area they found animals like yak, goat, and plants like pine tree and deodar tree. When they went to desert they found camel and scorpio, and they found cactus and babool as plant, and in sea or in any water body they found fish, turtles, seaweeds and algae. तो इस पूरी तालिका को अगर हम ध्यान से देखें तो विभिन्न स्थानों पर पाए जाने वाली जीवों की प्रजातियों को उन्होंने सूचीबद्ध करने का प्रयास किया. उनने कोशिश करी कि अलग अलग स्थानों पर पाए जाने वाले जीवों को हम एक टेबल में, एक तालिका में लें. तो उन्होंने देखा कि अलग अलग पर स्थानों पर पाए जाने वाले जीवों में अलग अलग प्रकार के जीव मिलते हैं. Now the conclusion of the activity. The first conclusion is that we find that organisms which are found in different places are also different from each other. It means different places have different organisms. The second conclusion which we draw from the activity, there is a relationship between surroundings and organism. Organism means plant and animal living there. So according to the activity performed by the Paheli and Bujo, every surrounding, every area has its own kind of plant and animals, and every area has different kind of plant and animal. The animal which are found in mountains, you will never found them in desert area.
पहेली और बूझो इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि विभिन्न स्थानों पर पाए जाने वाले जीवों में और उनकी परिस्थितियों के बीच बीच में एक बहुत गहरा संबंध है। जिन जीवों को आप पर्वतीय क्षेत्रों में पाते हैं, याक जैसे जीवों को, संभवतः आप उनको रेगिस्तानी क्षेत्रों में नहीं पा सकते। इसी प्रकार से जो जलीय जीव हैं, आप उनको अगर प्रयास करेंगे जंगल में पाने का, तो आप पाएंगे कि वो वहाँ पर नहीं मिलते। इसका मतलब एक सीधा सीधा संबंध है किसी भी परिवेश में और उसमें रहने वाले जंतुओं के बीच में। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, द हैबिटेट एंड अडेप्टेशन। अब इस अध्याय के हम एक महत्वपूर्ण हिस्से की ओर बढ़ रहे हैं। इस हिस्से में हम आवास और उनके अनुकूलनों के विषय में चर्चा करेंगे। First of all, the definition of habitat. A simple definition tells us about a place or surrounding where a living organism lives is called habitat. A place or surrounding where a living organism lives. यानी कोई ऐसा स्थान, ऐसी जगह जहां पर कोई सजीव रहने लगता है, आवास कहलाता है। वो उस स्थान से विभिन्न चीजों को प्राप्त करता है। वो अपने लिए भोजन, अपने लिए आश्रय और तमाम दूसरी प्रकार की चीजों को अपने आवास से प्राप्त करता है। अगर हम हैबिटेट को इस पूरे, अगर आप स्क्रीन पर ध्यान से देखें और हम हैबिटेट को क्लासिफाई करने का भी प्रयास करें एक सरल डेफिनेशन के साथ, तो आप देखेंगे हैबिटेट की डेफिनेशन, जैसे कि पहले हमने डेफिनेशन पढ़ा, द सराउंडिंग वेयर प्लांट्स एंड एनिमल लिव इज कॉल्ड देयर हैबिटेट। द हैबिटेट कैन बी क्लासिफाइड और कैटेगराइज इनटू टू डिफरेंट टाइप्स। फर्स्ट इज टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, सेकेंड वन इज aquatic habitat. When we subdivide it into different parts, the terrestrial habitat is divided into three different categories. First is desert, second is mountain region, and third is grassland. And aquatic habitats, you can classify them in two different parts. This is ocean, ponds and lakes. तो आवास जो कि किसी सजीव के रहने का स्थान है, उस आवास को अगर हम चाहें कि विभिन्न भागों में या वर्गों में विभाजित करें, तो हम पाते हैं कि आवास के दो विभिन्न प्रकार हैं। एक उसका स्थलीय और आवास कहलाता है एक प्रकार, और दूसरा प्रकार उसका जलीय आवास कहलाता है। अगर स्थलीय आवास को हम और आगे बांटने का प्रयास करें, तो मरुस्थल एक स्थलीय आवास हो सकता है, पर्वत एक स्थलीय आवास हो सकता है, इसके अलावा घास के मैदान या जंगल एक स्थलीय आवास हो सकते हैं। समान रूप से जलीय आवास में आप देखेंगे कि समुद्र, झीलें, नदियां, ये सब जलीय आवास को निर्मित करती हैं। एक बार once again we will try to highlight the habitats and its definition, because this is an important part of the chapter. Once again, you can note it down from the screen also. The surrounding where organism live is called a habitat. Habitat means a dwelling place, a place you can call it a home. Organism depends on their food, water, air, shelter and other needs for this. And several kind of plant and animal can live on a particular habitat. तो आप देख सकते हैं आवास किसी भी जंतु के रहने का स्थान है, और किसी भी आवास पर विभिन्न प्रकार के जंतु एक साथ रह सकते हैं। ठीक है, तो प्लांट और एनिमल और विभिन्न चीजें एक साथ जहाँ रहती हैं, वो कुल मिलाकर एक जंतु के आवास के रूप में हम उसको परिभाषित कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ हैबिटेट को हम लोग देख चुके हैं। टेरेस्ट्रियल यानी स्थलीय आवास, जहाँ लैंड पर यानी स्थल पर जीव रहते हैं। इसमें फॉरेस्ट सम्मिलित है। वी कैन इंक्लूड फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट, coastal areas and mountain region in terrestrial habitat. The lion, tiger and deer and some other animal which you can see on the screen are the part of are found on the terrestrial habitats. Aquatic habitat means animals and plants living in water bodies. These water bodies includes plants, swamps, lakes, rivers and oceans. And you will find whale, sharks, turtles, crab, starfish and jellyfishes in aquatic habitat. तो जलीय आवास का मतलब कि जहाँ जंतु जल में रहते हैं, किसी भी प्रकार का आवास जहाँ जल एक माध्यम के रूप में उपस्थित होता है। ये कोई तालाब भी हो सकता है, या आसपास की झील हो सकती है, नदी हो सकती है, यहाँ तक कि बड़े महासमुद्र भी जो है, सागर भी, उनको स्थलीय आवास में वर्गीकृत किया गया है। एक बार पुनः अगर हम इन दोनों को कंपैरेटिव स्टडी करें, वी वांट टू कंपेयर, तो
the definition remains the same. The third point which you should note down in your notebook, that is, the water is the medium in aquatic habitat and in terrestrial habitat air is the medium. यानी जलीय आवास में आप पाएंगे कि जल एक माध्यम होता है जिसमें जंतु निवास करते हैं या उनका आवास होता है, और जहाँ टेरेस्ट्रियल हैबिटेट होते हैं वो वायु के संपर्क में सीधे तौर पर रहते हैं. और यही बात एक तालिका के रूप में इन टेबुलर फॉर्म, आई हैव ट्राइड टू फिल इट इन अ टेबुलर फॉर्म where definition are on the both sides and with proper example. So I request you all to please note down this difference between the terrestrial habitat and aquatic habitat. आप टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक हैबिटेट यानी स्थलीय और जलीय आवास के मध्य अंतर को भी एक बार चिन्हित कर सकते हैं. उनके उदाहरणों के साथ आप उसको नोट करें, ऐसी आशा मैं आपसे करता हूं. Now the next part, the component of habitat. Components of habitat, you can see on the screen, the habitat is divided into two different components. It means habitat has two components. The first component is the biotic components. Biotic components includes plants, animal, microorganisms, and in other hand the abiotic component, it include light, temperature, water, soil and air. आवास के घटकों को हम दो भागों में विभाजित करते हैं. एक जैव घटक के रूप में जाना जाता है, दूसरे घटक को हम अजैव घटक कहते हैं. जैव घटक यानी जहाँ सजीव पाए जाते हैं, यानी किसी भी आवास का वो घटक जिसमें सजीव होते हैं. इसमें हम पौधों को सम्मिलित करते हैं, इसमें हम जंतुओं को सम्मिलित करते हैं, इसमें सूक्ष्मजीव सम्मिलित किए जाते हैं. जबकि दूसरी ओर जो अजैव घटक हैं उसमें प्रकाश, तापमान, जल, मृदा और वायु जैसी चीज़ों को हम सम्मिलित करते हैं. लिविंग कंपोनेंट, once again you can see on the screen that all living things like plant, animal and microorganism together constitute biotic component, and in the same way the non-living component, abiotic component, all non-living things like rock, soil, air, water, light and temperature constitute abiotic components of a habitat. Now the definition of a new term, you must note down the definition of this term, that is adaptation. The presence of a spatial feature in or certain habits which enable a plant or an animal to live in its surroundings is called its habitat. अनुकूलन का अर्थ समझने का प्रयास कीजिए. अनुकूलन को बहुत सरल भाषा में हम ये कह सकते हैं कि किसी भी जीव में वो विशेष गुण या लक्षण या उसके स्वभाव में वो चीजें को पाए जाना जो उसको किसी विशेष प्रकार की परिस्थितियों में सफलता से जीवन को जीने योग्य बनाती हो. यानी वो सारे गुण जो किसी परिवेश में उसकी मदद करते हो ताकि वो एक सार्थक और सफल जीवन को व्यतीत कर सके. नाउ स्विच ओवर टू द नेक्स्ट स्क्रीन. देयर इज अ सिमिलर टर्म which is a kind of adaptation, that is acclimatization. According to the acclimatization, small changes that take place in the body of single organism over short periods to overcome small problems due to change in surroundings are called acclimatization. Now you can understand this with the help of an example. If we live in the plains and suddenly go to high mountains, we may experience difficulty in breathing for some days. We need to breathe faster. After some days our body adjusts to the change condition. Acclimatization या अनुकूलन को आप अनुकूलन का ही एक प्रकार है जिसको आप समझ सकते हैं. बहुत छोटे परिवर्तन जो किसी सजीव में होते हैं बहुत अल्प समय के लिए, अल्प अवधि के लिए, ताकि वो अपने आसपास के परिवेश में होने वाली परिवर्तनों से होने वाली समस्याओं से अपने आप को एडजस्ट कर पाए. जैसे उदाहरण के तौर पर पर्यानुकूलन का एक बहुत सिंपल उदाहरण है जिसे आप सबने शायद महसूस भी किया हो जिन्होंने पर्वतों की यात्रा की होगी, कि अगर हम मैदानी इलाकों से अचानक पर्वतों पर यानी ऊंचाई पर जाना शुरू करें तो हमें सांस लेने में तकलीफ का सामना करना पड़ता है और हमें तेजी से सांस लेने की ओर आगे बढ़ना पड़ता है. लेकिन कुछ समय बाद जो तेजी से सांस लेने की प्रक्रिया है उसको हमारा शरीर एडजस्ट कर लेता है और हम आसानी से उन बदली हुई परिस्थितियों में भी अपने आप को रख पाते हैं, सफलतापूर्वक जीवन यापन कर पाते हैं. तो इस प्रकार के अल्प अवधि में होने वाले परिवर्तनों को हम पर्यानुकूलन या एक्लिमेटाइजेशन के नाम से जानते हैं.
अब इस अध्याय में आप जब अपनी टेक्स्ट बुक में देखेंगे, व्हेन यू गो थ्रू योर टेक्स्ट बुक ड्यूरिंग रीडिंग, यू विल फाइंड दैट देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स living in different types of habitat, and they adapted to their habitat very well. They have adapted very well to their habitats. So one by one we will go through different habitats, and we will try to find out the adaptations found in the animals living in those places. The first place is desert. तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि विभिन्न प्रकार के जो आवास हैं, हम एक एक करके उन आवास की तरफ चलेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि उन आवास में रहने वाले जंतुओं ने उन आवास की परिस्थितियों से कैसे सामंजस्य बिठाया, कैसे अनुकूलन किया है। आपके सामने जो दृश्य आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये दृश्य एक रेगिस्तानी क्षेत्र का है, एक मरुस्थलीय क्षेत्र का है। यहाँ आप देखेंगे कि मुख्य रूप से जिसे हम डेजर्ट का शिप भी कहते हैं, रेगिस्तान का जहाज के नाम से भी जाना जाता है, कैमल दिखाई देगा। वेजिटेशन नहीं है, वनस्पतियाँ दूर दूर तक नहीं है, ह्यूमिडिटी का लेवल बहुत कम होता है, वायु बहुत शुष्क है, देयर इज वेरी लेस ह्यूमिडिटी, वेरी लेस वेजिटेशन, लेस अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। तो दीज आर कंडीशंस प्रिवेलिंग इन डेजर्ट एरियाज। द मेन प्लांट्स विच यू विल फाइंड इन डेजर्ट एरियाज आर कैक्टस, एगेव, डेट पाम। इन पौधों की उपस्थिति आप पाएंगे। तो हम सभी को एक साथ ना लेते हुए वी विल ट्राई टू कंसंट्रेट ऑन कैक्टस ओनली। व्हाट काइंड ऑफ अडेप्टेशन डज कैक्टस प्लांट बियर? तो फर्स्ट यू विल फाइंड द लीव्स आर एब्सेंट or reduced or modified into spines to reduce water loss by transpiration. Second, stem is green and does photosynthesis. The third adaptation is stem stores water, so it is thick and fleshy. Deep root system to collect maximum water from deep soil. And one more adaptation you will find in plant living in desert area, the thick waxy layer on stem prevent water loss because there is less availability of water. So animal and plants living in desert area, they have to prevent water loss. Now you can see on the screen the ship of the desert. इस रेगिस्तान के जहाज का एक दृश्य आपके सामने, जिसको हम ऊंट कहते हैं। संभवतः आपने सबने इसको देखा होगा। कैमल की क्या एडेप्टेशन है? व्हाट आर द एडेप्टेशन फाउंड इन केमिकल सो दैट ही कैन इजीली लिव इन द कंडीशंस ऑफ डेजर्ट? द फर्स्ट एडेप्टेशन इज कैमल हैज लॉन्ग लेग्स टू कीप द बॉडी अवे फ्रॉम हॉट सैंड. सेकंड एडेप्टेशन, इट स्टोर्स फूड एज फैट इन इट्स hump. Third adaptation is it can store water in its body. Hoofs of a camel will suit it for walking on sand. You can see on the screen the hoof of a camel, and you can also see the eyelashes. These long eyelashes prevent sand from falling into the eyes of camel. Now next, apart from camel, you can find number of other organisms, animals found in desert area. You can find different types of snakes and small organisms like rabbits or mouse. These animals remain in burrows during the day and comes out during the night. ये जो जंतु कैमल के अलावा, ऊंट के अलावा आप देखेंगे जिसमें चूहे सम्मिलित हैं, विभिन्न प्रकार के सांप या स्कॉर्पियो जैसे होते हैं, ये दिन के समय क्योंकि रेत बहुत गर्म होती है तो ये बहुत अंदर भूमि के नीचे गड्ढे करके या छेद करके ठंडे आवासों में रहते हैं दिन के वक्त, और जब तापमान में गिरावट आती है रात्रि के समय तब ये बाहर निकलते हैं और अपने लिए भोजन इत्यादि की तलाश ये करते हैं. अब माउंटेन रीजन, नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द माउंटेन रीजन. द माउंटेन ट्रीज ग्रो इन कॉनिकल पैटर्न, एक कोन शेप में ये बढ़ते हैं, और इसका द बेनिफिट ऑफ बीइंग कोन शेप is the sloping branches help snow to slide down. Animals in mountain region also have adaptation. You can see one by one. The first adaptation is snow leopard is white in color and can hide in the environment. Second adaptation, thick fur to protect from cold. Third adaptation is claws to prevent slipping on the surface of snow. Now the next is mountain. You can see mountain goats. Goats and sheep are also found
on mountain. They have thick white fur which prevent them from cold temperature, and the second adaptation is the strong hooves from running up the rocky slopes. Now this is another animal which is found in mountain areas. This is yak. Long thick fur of yak protected from severe cold in the winter. विंटर यानी सर्दियों में जो तापमान में गिरावट आती है, उस गिरावट को ये याक बड़ी आसानी से सह पाते हैं. क्यों ये ऐसा कर पाते हैं? क्योंकि इनके शरीर पर आप देखेंगे कि बालों की एक मोटी परत है जो इनको इस पर्वतीय ठंड से बचाती है. ग्रासलैंड की तरफ आते हैं. ग्रासलैंड्स में आप देखेंगे जो सबसे प्रमुख रूप से सबसे ज़्यादा आसानी से तो नहीं कहेंगे, लेकिन जो बहुत प्रमुख रूप से पाया जाने वाला एक जीव है वो है शेर, द लॉयन. द एडेप्टेशंस ऑफ लॉयंस आर द लाइट ब्राउन कलर help to hide in grassland. Second, long claws which can be withdrawn inside. Third adaptation is both the eyes in front of the head gives correct idea about the location of the prey. And the other organism which is found in grassland is deer, हिरण. हम जिसको देखते हैं grassland में, हिरण के जो अनुकूलन है उनको एक एक करके हम पंक्तिबद्ध करते हैं. The first adaptation can run faster to escape from the predator. Second adaptation is having strong teeth, chewing hard stems. Third adaptation is the long ear to hear the movement of the predators. Third adaptation, eyes at the both side of the head so they can look into the all direction for danger. And now after completing grassland and the animals found in grassland, we will move toward the aquatic habitat. Next, the aquatic habitats. The animal found in aquatic habitat have different kind of adaptation. जलीय आवासों में पाए जाने वाले जीवों में एक अलग प्रकार के अनुकूलन आपको देखने को मिलेंगे. जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं उसमें फिश प्रमुख रूप से जो जलीय प्राणियों में पाई जाती है. हम एक एक करके उसके अनुकूलनों के विषय में पढ़ेंगे. द फर्स्ट अडेप्टेशन इज द स्ट्रीमलाइंड बॉडी शेप which makes easy the movement in water. Second, the presence of gills which is for respiration. Second, the body have scales which protect them from running water and other mechanical injuries. You can see the blowholes in dolphins and whales to breathe air from atmosphere so that they can respire even when they go deep inside the ocean. And in plants you will find different types of adaptation. You can see in the stem of lotus, it is hollow, long and light. Leaves are disc shaped, flattened. Leaves and flower float on water. Leaves have waxy coating to prevent water stagnation. आप देखेंगे कि जो कमल जैसे प्रमुख रूप से पाए जाने वाली जलीय आवास का पौधा है, इस पौधे में आप पाएंगे कि लोटस में आपकी देखेंगे कि जो टहनियाँ हैं वो खोखली हैं, अंदर से हल्की हैं ताकि ऊपर तैर सके, नीचे ना डूबे. जो उनकी लीव्स हैं वो तैरती हैं क्योंकि फ्लैट होती हैं, डिस्क शेप होती हैं. पानी में गले ना इसके लिए उनके ऊपर एक वैक्सी कवरिंग भी पाई जाती है. और आप देखेंगे ये एक आपके लिए मैंने बनाया था कि एयर कैसे इन में भरी होती है स्टाल्क में, लीफ स्टाल्क में, जो उनको बनाए रखती है. ठीक है. और इस अध्याय में इसको आप देख रहे हैं. तो जैसा कि मेरा प्रयास था, मैंने कोशिश करी कि मैंने आपसे पहले भी कहा था, आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट दिस चैप्टर इज वेरी लॉन्ग, सो आई हैव डिसाइडेड टू स्प्लिट इट इनटू टू पार्ट्स. तो split into two parts. So what I have done, I have completed the first part, and now I am completing this part, and we will meet for the next part. Till then, thank you for listening me so carefully. Thank you very much.